Hey guys, I hope सब मजे में होंगे एंड पढ़ रहे होंगे. सो इन टुडेज पॉडकास्ट आई वांटेड टू रिकॉर्ड विद समवन जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग फील्ड में काम कर रहा है बिकॉज यहाँ पे हर पेरेंट्स ऑलमोस्ट सारे पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कंप्यूटर साइंस के पीछे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है. तो आई हैव समवन विथ मी जो एक्स ई फोर स्टूडेंट है जो 2015-16 में हमारे पास था. 2021 में ही गॉट हिज डिग्री. ही इज़ अ सीनियर क्लाउड इंजीनियर एंड लेट मी टेल यू दिस कि हर्षल थर्ड ईयर से ही जॉब कर रहा था. आई मीन एजुकेशन ख़त्म होने से पहले ही हैज़ हिज जॉब बिकॉज स्किल्स मैटर करता है. तो लेट मी इंट्रोड्यूस हर्षल कौन के. हर्षल, Hello. वेलकम टू ई अगेन. Thank you so much, sir. It's an honor to come back here once again. So Harshal, main line, how's life? Sir, life is going so far so good. I would say awesome. Awesome. So how does it see Harshal? Ultimately हम लोग जो पॉडकास्ट जो है मेन रीज़न ही यही है कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग का जो ऑब्सेशन है वो दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है एंड आई डू रिस्पेक्ट इट बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच वी हैव इन दिस टाइम. तो लेकिन ये कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है ये सबको पता है, कैसे करनी है ये भी पता है, करने के बाद क्या होता है व्हाट आफ्टर इंजीनियरिंग, मुझे ज़रा उस पर मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा है ना. आई होप स्टूडेंट्स एंड उनके पेरेंट्स को भी होगा. सो इफ़ यू कुड गाइड अस. सो बेसिकली हर्षल, यू डिड योर इंजीनियरिंग फ्रॉम मुंबई. सो व्हाई मुंबई? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो औरंगाबाद जैसे सिटी से हैं दे प्रेफर पुणे और मुंबई. बट व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ बीइंग एंड लाइक डूइंग योर इंजीनियरिंग इन मुंबई? क्या एडवांटेजेस पुणे से? So the main advantage of Mumbai is that in Pune, right, you'll find a lot of Marathi people, and in most of the cases, people who are around you till your 12th, your relatives, all there are in Pune. So you won't feel like outside. Okay. You'll feel like home in Pune. Okay. But in Mumbai, that's a completely different case because you'll meet people from all around the world, not just in India. In Mumbai, you'll get to meet everyone if you are open to it. But see, in Mumbai, you'll probably feel कि yeah, finally you have come to some different city. And जो city इतना fast होता है, right? People do not care about you there. Right. They're like, if you want to do it, do it. Otherwise, we don't care. Okay. Right? पुणे में ऐसा नहीं है. पुणे में You been to sympathize Pune? करते हैं लोग Okay. ज़्यादातर, right? And until and unless you get out of your comfort zone, you're not learning, you're not growing. Okay. So that is for sure. So ultimately, Mumbai breaks your comfort zone, right? Yeah. Okay. So Harshal, if you could tell us what are the best engineering colleges you have seen in Mumbai, ताकि बच्चों को भी थोड़ा फायदा हो जाए. There are a lot of colleges, but personally, I like few of them, which I like to name. The first one is VJTI Obviously. for obvious Yeah, reasons. yeah. Mm. Then Vivekanand, and then the Vidya Alankar. These are the good colleges. Mm-hmm. My college was in Navi Mumbai, so I have like more connection with the Navi Mumbai colleges. So there are a few good colleges. DY Patil Nehru, then Lokmanya Tilak College of Engineering, which is my college. It's a good college. Then Datta Meghe. Then there is SIES Panvel. So these are Okay. a few good colleges Okay. that I will recommend everyone. Okay. I hope note down कर लिया होगा तुम लोगों ने. So basically you are an cloud engineer. Yeah. So कुछ बता सकते हो हमें what is AI, ML and ये cloud ये सब क्या होता है? So सबसे पहले ये सब buzzwords है. Okay. ठीक है. Buzzwords है. Okay. Nice word. Anyone who tells you learn AI, ML, data science तो बहुत अच्छा वाला buzzword है. Oh. Data scientist बनने के लिए at least need the 10 years of experience working in the industry. Then only you can call yourself a data scientist. Okay. These are very generalized terms. So if you are running behind these buzzwords, you'll keep on running. ठीक है. अगर तुमको कुछ करना है, you'll have to understand the basics of computer science and technologies in general. Say AI, ML, blockchain, cloud computing. These are all just buzzwords. अगर ये सब तुमको सीखना है, you'll have to first learn कि basic operating system क्या है, what is networking, and ये जो subjects है ना जो ज़्यादा interesting नहीं है, there are more often a boring side. These subjects will make you an expert in the like whatever domain you're choosing, right? Okay. So my suggestion is if you are going for computer science, at least you should have an interest first and then you should learn all the basics. I'm not talking about any programming languages specifically because जब भी मैं बेसिक्स बोलता हूँ लोग बोलते हैं अच्छा फिर कौन सी लैंग्वेज सीखे, जावा या पाइथन. इट्स लाइक नो, सीखो नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक सीखो, टेल मी हाउ द कंप्यूटर बूट्स,
कि कैसे होता है, व्हाट हैपेंस इन द बैक एंड। अगर रिफ्रेश कर रहे हो तो मैं उससे क्या होता है, कुछ ही नहीं होता है, बट ये बहुत कम लोगों को पता है। ओके, सो बेसिकली हर्षल, अभी लेट्स कम टू द 11th 12th के बच्चे एंड पेरेंट्स, बिकॉज while selecting the branches so many colleges have the different branches like computer, some colleges have IT, उसके बाद है AIDS, some have AIML. Recently I have come across a branch called electronics and computers. So these, ये जो buzzing है यहाँ पे, so जब you are working at a senior position in a one of the best IT companies, तो उसमें does it really matter कि तुम्हारा कंप्यूटर हुआ है, AIDS हुआ है, या AIML हुआ है, या फिर IT हुआ है? Does it matter? Okay, I'll answer that question, but first I like to mention few things which I have noticed in past few years. Okay. जब मैं इंजीनियरिंग के लिए ब्रांच चूज कर रहा था, at that time the scenario was everyone wanted mechanical civil. This time is CS. ठीक है। मेरा एक दोस्त है, उसके लिए कॉलेज ढूंढ रहा था हम लोग, तो कैप राउंड्स खत्म होने के बाद वी फाउंड कि बस सीएस में ही सीट बचा। CS में ही अगर तेरे को लेना है तो ले ले, ऐसा। सो दैट वाज द सिनेरियो, ठीक है। बट अभी बिकॉज ऑफ द कोविड this IT industry got so much boom. Obviously. And people saw where the money is lying. पैसा तो IT में दिख रहा है, ठीक है। तो the point is कि most of the लोग जो engineering में आते हैं, they don't come here by their choice or their interest. Most of the people, even if you are interested in engineering, you are not particularly interested in mechanical or computers. ठीक है। तो I'll suggest if anyone who's choosing like which branch to decide, it's better if you choose the branch which interests you more, apart from कौन सा boom में चल रहा है। तो पॉइंट इज कि जब मैं कॉलेज ले रहा था, राइट, तब मैकेनिकल एंड वाज सो मच बूम, एंड व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक कंप्यूटर, आई हर्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, एक कंप्यूटर में क्या है, आईटी वाला टीसीएस वाला जॉब होता है, ऐसा होता है वो टाइम। एग्जैक्टली, कॉल सेंटर इज द परफेक्ट टर्म, ठीक है। तो आई वाज लाइक ठीक है, फिर मेरे को तो इंटरेस्ट है, मेरे को सीखना था, आई केम हियर। अभी सीन क्या हो गया कि मैकेनिकल वाले तब जो ले रहे थे वो 2000 लाइक फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स आर लाइक भाई रेफर कर दे अब कौन सा करूँ, ये क्या सीखूं, ऐसा हो गया। तो नाउ पीपल आर शिफ्टिंग टू दिस, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि सारे कंप्यूटर इंजीनियर्स आर गेटिंग द गुड जॉब्स। देयर आर ओनली फ्यू पीपल which are you are hearing about कि अरे हाँ ये लोग को इतना पैकेज मिल गया, इतना मिल गया, यहाँ पे है। हमको बस गिनी चुनी स्टोरीज मिलती है, तो वी थिंक कि अरे कंप्यूटर में तो सबको जॉब लग रहा है, ऐसा नहीं। आई नो पीपल हु डोंट हैव जॉब येट एंड दे आर गुड कंप्यूटर इंजीनियर्स। ओके, सो बेसिकली बीइंग एन कंप्यूटर गाय, व्हाट डू यू सजेस्ट कि जो बच्चा भी 11th 12th में पढ़ रहे हैं, तो व्हाट आर द क्वालिटीज आई थिंक दे शुड बी कंसीडरिंग वेरी फर्स्टली बिफोर चूजिंग द ब्रांच कॉल्ड कंप्यूटर इंजीनियरिंग? Qualities, I will say, अगर interest है तो you should choose it because you will get to learn all the things. And engineering में basically यही होता है, कोई भी branch आप choose करो, irrespective of it, you'll have, unless and until you are making the hard work, you're learning it by yourself, you're not doing anything else. तुम अगर बस कॉलेज के भरोसे रहोगे और कॉलेज फिर तुम्हारे भरोसे पे it does not like प्राइवेट कॉलेज हो, IIT हो, जब तक तुम खुद से नहीं पढ़ोगे इट्स नॉट गोना हैपन। तो खुद से पढ़ना पड़ेगा सबको। और ये जो 11th 12th में जो बच्चे पढ़ रहे हैं अभी एंड जो फिर इंजीनियरिंग जिनका चल रहा है, इन बच्चों के लिए भी ये मैसेज लाउड एंड क्लियर है कि किसी भी कॉलेज में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जो पेरेंट्स जो बोलते हैं कि 11th 12th में बस 2 साल पढ़ लो उसके बाद जिंदगी तो ऑसम है, ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। यू आर स्ट्रगलिंग टिल यू डाई, जब तक जिंदा हो तब तक फाइट करनी है। सो बेसिकली व्हाट ही सेड कि अल्टीमेटली इंटरेस्ट है तो ही यहाँ पे शिफ्ट होना। देयर इज नथिंग लाइक द ब्रांचेस, बिकॉज आई हैव विजिटेड, आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ द सीनियर फैकल्टीज फ्रॉम द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेज, जो मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैंने उनसे पूछा कि सर व्हाट यू सी लाइक आफ्टर 10 years व्हाट विल बी द सिनारियो ऑफ इंजीनियरिंग? दे टोल्ड मी शैलेश कि 10 साल के बाद कोई ब्रांच नहीं बचेगी। there will be no branch because ultimately the problem, अगर तुम्हारे पास प्रॉब्लम आई है, अगर तुम उसे सॉल्यूशन उसका दे सकते हो, that is what engineers are supposed to do। तो 10 साल के बाद कोई ब्रांच नहीं रहेगी। So let's come to the topic। हर्षल, ये what is cloud engineering? Could you please उस पर कुछ बता सकते हो हमें? So we all know that we store our data in Google Drive, iCloud, ठीक है। This is just one of the service which cloud providers offer, which is storage. Apart from this, there are more than 200 different services like compute, then services, a lot of different things that you can do. तो पहले क्या होता था ना, 10-12 साल पहले हर कंपनी का अपना एक डेटा सेंटर हुआ करता था, उसमें 10 तरह के इंजीनियर्स हुआ करते थे, नेटवर्किंग इंजीनियर, डेटा इंजीनियर, ऑल सॉर्ट्स ऑफ इंजीनियर्स। बट वहाँ पे एक लिमिट होता था, हाउ मेनी सर्वर्स यू कैन स्पिन अप, क्योंकि तुम्हारे पास अगर 10 कंप्यूटर है तो तुम 10 ही चला सकते हो, राइट? ओके।
तो ये limitations था which few big players saw, Google, Amazon and Oracle, these big players saw it. They solved it by creating a service offering of cloud computing जहाँ पे तुमको unlimited है, अगर if you wanna spend more you can spin up n number of servers obviously. So this is what the cloud computing is, where you use someone else's computer to do your job, all sorts of. And as a cloud engineer, you'll have to configure those services in order to like all sort of networking, computational, everything. So basically 10 साल पहले 10 लोग जो काम कर रहे थे, now one guy is doing it. अच्छा, तो अल्टीमेटली कम कर रहे हैं लोगों को. Yeah, that's what the technology is about, right? ओके, सो बेसिकली अब हर्षल ने जो भी हमें बताया दैट वाज अ कंप्लीट टेक्निकल वाला पार्ट. आई होप सबको समझ में आएगा नहीं आएगा, दैट इज अप टू योर इंटेलेक्ट. इस तो तुम बैक स्पेस करके आई मीन बैक क्या बोलते हो, सो बैकवर्ड जाके भी एक बार देख सकते हो. हर्षल ने अभी जो भी बताया, तो अल्टीमेटली व्हाट इज द स्कोप ऑफ एन क्लाउड इंजीनियर, क्या है उसका आगे जाके, व्हाट आर द हायरार्की लेवल्स एंड सो if you think from cloud's perspective, I'll suggest कि अब ये देखो कि 10 साल बाद कौन सा टेक्नोलॉजी रहेगा in the market, ठीक है? Okay. There are few technologies, again buzzwords, which is gonna stay here. The first one is obviously the blockchain, क्योंकि जैसे अभी adaptation हुआ है blockchain के in recent times after COVID specifically, that technology is gonna stay here. ठीक है, नॉट जस्ट फॉर द करेंसीज बट ऑब्वियसली इट हैज सम गुड यूज केसेस, तो वो वाले तो रहेंगे. ओह, ब्लॉकचेन, सॉरी टू इंटरप्ट यू, ये ब्लॉकचेन बस क्रिप्टो छोड़ के भी होता है? अरे बहुत होता है. या बिकॉज़ बेसिकली आई एम नॉट दैट मच टेकन अप बिकॉज़ आई एम इनटू दिस बिजनेस. सो अल्टीमेटली मुझे भी ब्लॉकचेन का मतलब बस क्रिप्टो ही पता था, लाइक ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो करेंसीज. ये बड़ा कुछ है? बहुत इट इज अ प्लीज, ब्लॉकचेन क्या होती है एग्जैक्टली बता सकते हो? ओके, इट्स अ रियली ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी एक्चुअली. And this crypto and all these tokens, right? This is just like 1% of it, where people are just focusing on that, and they are not making money. The ones who are making money are focusing on the 99%. क्या बात है, क्या बात है, well said. अगर आपको क्रिप्टो में भी बनना है तो focus on 99%, learn the technology and then you can do it. तो yes, the crypto का बहुत अच्छा और wonderful use cases है जो maybe coming years में we'll get to see those. And as of now, just to mention here, as of now, a lot of governments are actually going into the crypto, international governments. There is like a lot of demand, so basically, okay. Then there is a second thing which is AIML, okay. So AIML, yes, artificial intelligence and machine learning. Yeah. So अभी ये क्या है ना, it is not just कि if I say machine learning, like there will be some machine like very intelligent, ऐसा नहीं होता है. This video that we are recording, even उसका जो filters है, those are also used कि थोड़ा बहुत इसमें ML use होता ही है. It is used everywhere, literally. So this technology just improves how the technology was we are using. It just emphasize that and वो उसको और better बना रहा है. So this is also gonna stay here, ठीक है? अब ये जो सारे technologies है, apart from this we have a lot of apps mobile पे, Android, iOS, desktop apps. So ये सारे technologies का हर बार अगर उसको इंटरनेट पे यूज करना है तो इट हैज टू हैव अ सर्वर्स. ओके, एंड ऑल दिस सर्वर्स आर ऑफर्ड बाय क्लाउड नाउअडेज एंड मोस्ट ऑफ द मार्केट शेयर इज विद द क्लाउड प्रोवाइडर्स. सो अगर ये सारे टेक्नोलॉजीज रहेंगे, इफ यू बिलीव इन एनी वन ऑफ द टेक्नोलॉजी, देन आई कैन अश्योर यू दैट क्लाउड इज गोना स्टे हियर फॉर द नेक्स्ट कमिंग 10-15 years. So whenever you are choosing कि कौन से डोमेन में आई हैव टू गो, देन डोंट थिंक कि आज क्या चल रहा है मार्केट में. थिंक कि 15 साल बाद क्या चलेगा, बिकॉज देन ओनली यू विल बी एन एक्सपर्ट इन दैट टेक्नोलॉजी, देन ओनली यू विल बी मेक अ लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इट. जब तुम उसमें एक्सपर्ट होगे तो 15 साल बाद अगर आई फील लाइक कि 15 साल बाद अगर मेरे को सी लैंग्वेज चलता हुआ दिख रहा है, समझ रहे, आई लीव एवरीथिंग, आई जस्ट लर्न सी नाउ एंड आई जस्ट कीप ऑन वर्किंग ऑन सी, क्योंकि 15 साल बाद तो सी चलेगा, राइट? दैट्स हाउ यू शुड चूज योर डोमेन. सो आई होप जस्ट एक जहन में ख्याल आया, जो भी बच्चे अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग एंट्रेंसेस की, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं XYZ कॉलेजेस से, आई नो तुम मुझे सुन रहे हो, सी द डिफरेंस बिटवीन द स्टूडेंट जो 11th आई मीन जो इंजीनियरिंग कॉलेज में है एंड समवन जो ऑलरेडी टेक्नोलॉजी में काम कर रहा है. ही इज टेलिंग यू अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर गेम. 15 साल बाद की सोचो, अभी की मत सोचना. Exactly. तो हर्षल बेसिकली अभी ज़्यादा टेक्निकल नहीं करते इसको, थोड़ा जनरल स्टेटमेंट जनरलाइज करते इस टॉपिक को. जो बच्चा अभी जो क्लाउड कंप्यूटिंग है, AI है, डेटा साइंस है, ये सब तो सिलेबस में नहीं होता है. नहीं. तो इन्हें तो सीखना पड़ेगा, बिकॉज जितना मुझे पता है अगर ये सिलेबस में होता भी होगा
लेकिन रियल टाइम में इनका जो यूज है वो कहीं और ही होगा। तो इन बच्चों ने, अगर कोई बच्चा फाइनल ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो जैसे हमें पता है कि यू गॉट जॉब इन थर्ड ईयर इटसेल्फ, तो अल्टीमेटली कौन से कोर्सेज से शुरू करना चाहिए अगर समवन इज हैव द हैबिट, आई मीन हैव द इंटरेस्ट कि उससे क्लाउड में ही काम करना है? So we are living in the best world humankind ever witnessed, where just click of buttons can get you all sort of knowledgeable resources. तो उसका हम यूज नहीं करते बेसिकली। तो इफ यू नो व्हाट यू गोना डू, लाइक ये वाला डोमेन में इफ यू वांट टू वर्क, देन a simple Google search will land you to the Udemy site or some YouTube video. There is always some guy like me or Shailesh sir who make a YouTube video out of it just to share like what we have learned. So agar if you find the right content, which is very easy to do, I am telling you, and you don't have to even pay online for someone to like get it. It's all free of cost available. And it is available on his channel also. His channel is available on YouTube. You can look after. हर्षल नाम क्या है चैनल का? हर्षल गोंडके। हर्षल गोंडके। You can visit the channel. वहाँ पे भी तुम्हें बहुत कुछ डेटा मिल जाएगा। Typical engineer with zero creativity. Typical engineer with zero creativity. Okay. तो बेसिकली अभी जो बच्चे कर रहे हैं, तो आई होप फिर से एक बार, तो हर्षल मेजरली जो क्राउड हमारे चैनल में वीडियोस को देखता है, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 11th-12th के हैं। तो 11th-12th में ऑब्वियसली एज समवन सेड कि अगर तुम्हारी पास्ट मिस्टेक से तुमने सीखा नहीं तो फिर तुमने ग्रो नहीं किया। तो अल्टीमेटली खुद के मिस्टेक से सीखने से अच्छा किसी और के मिस्टेक से सीखना कभी भी बेनिफिशियल ही होता है। सो जो हमारे लिसनर्स हैं जो देखते हैं हमें 11th-12th में जो पढ़ रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अच्छी कॉलेजेस के लिए, उनके लिए क्या तुम सजेशन दोगे? There is one thing जो मैं हर किसी को सजेस्ट करता हूँ, whoever is in 11th or 12th, which sir might not gonna like, which is irrespective of you're getting into IITs, NITs or any private college, it does not matter. Okay, it's a hard truth which no one talks about, but colleges जितना तुम सोचते हो उतना मैटर नहीं करता है। The only thing is matter, why IITs matter, why everyone wants to get into IIT. There is a reason for it, because you get surrounded by people. Good people. Yes, you're going college for people. अगर आप सोच रहे हो कि कॉलेज जाके मैं पढ़ूंगा, 10 पॉइंटर लाऊंगा, एक्सपर्ट बनूंगा, तो that's not gonna happen. अगर आप IIT में भी हो तो भी नहीं होगा। आपको बस कॉलेज में you will have to find, अच्छे कॉलेज में जाओगे तो you will get surrounded by good people, like-minded people, passionate लोगों के साथ मिलोगे, you will get passionate basically. जैसे सराउंडिंग है, तो that's the only thing you have to do in college. Just get into good college, reputed college, you will find good people, enjoy your college life, study on your own, make yourself skill up, update your game as sir said, and then only something can happen. Because I know people who had 10 pointers, they basically did nothing for quite a while, and I know people जिनके बैक भी लगे थे कॉलेज में, but they are at a level जहाँ पे it's unimaginable. They're working as a senior cloud engineers. मेरे बैक नहीं लगे थे. I'm all clear. He's all clear though. Yeah. Okay. That's the thing. You should just get all clear, enjoy your life, college life, and make a good friends, get surrounded by good people, and just skill up. Okay, that's so the only hack. That's the only hack. Yeah. So basically one closing statement. So जिसका मुझे आंसर नहीं मिला, एंड जब तक आंसर नहीं मिलेगा तब तक हम लोग पूछेंगे क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन ये था सर मेरा कि आपने जो मिस्टेक्स की थी 11th-12th में, जो हमारे लिसनर्स इन्होंने भी नहीं करना चाहिए, तो ऐसा कुछ आप उन्हें बता सकते हो तो प्लीज बता देना, बिकॉज आई नो I have so many talented lads जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, but they are underperformed. They are not using their talent up to that level because everyone is busy with their sort of distractions, and most of the distraction is mobile. So ultimately you had such sort of problems, and you must have committed some mistakes. but मैं चाहता हूँ कि एक बार उन पे थोड़ा नजर डाल देना, because guys he is very successful engineer. बहुत अच्छी जगह पे है, आई नो हिम पर्सनली, बहुत अच्छी प्लेस पे है, और वहाँ पे जाने के लिए इसने भी बहुत सी गलतियाँ की है जो मैं चाहता हूँ ये तुम्हारे साथ शेयर करें, ताकि ये वीडियो भी खत्म करना है हमें। तो दी ओनली सजेशन इज कि ना, जब ये एज होता है ना 12th वाला 18 to 24,
इसमें यू विल फील लाइक वॉट एवर यू आर डूइंग इज द बेस्ट चॉइस टू डू, एंड फिर हमको ऐसा लगता है कि अगर सर कुछ बता रहे थे अच्छा इनको क्या ही पता होगा, इसको क्या पेरेंट्स आता है? कुछ इसको क्या आता है? पेरेंट्स हाँ। कुछ बता रहे होंगे तो अरे इनका तो जनरेशन ही अलग है, कोई हाँ। हमारा सीनियर बताते तो हमको लगता है अरे यार ये तो तेरा तो अलग था मेरा अलग है, ऐसा we think whatever choices we are making are the best choices, but sometimes it's not really good. You should at least consider from whatever others are suggesting. I'm not saying listen to it, just consider if they're saying it, they actually mean it. They उन्होंने experience किया, that's why they're saying it, right? And whenever you try to make decision, always make it from third person's point of view. Don't make your decision from your point of view. जब हम खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो वी थिंक वी आर द राइट वन, बट हम अगर थर्ड पर्सन से खुद के बारे में सोचेंगे तो वी रियलाइज वी आर डूइंग लाइक मेकिंग अ लेगेसी डिसीजंस, सो दैट्स व्हाई. एंड 12th में ये फोन गर्ल्स एंड ऑल ये सब पे थोड़ा टाइम कम स्पेंड करो, इट्स not gonna work. It's not gonna work. It never do. It's never do. And what is gonna work is what as he said. So मतलब I'm just closing the video off because ultimately the complete conclusion of the video is what Harshal has suggested us. Ultimately, irrespective of which field you're working, irrespective of which class you're studying, you need to you need to upgrade your game, whatever the game you're playing, because no one is gonna help you out. He is the guy जिसका एजुकेशन खत्म हो गया है एंड ही इज वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी एंड अल्टीमेटली खत्म नहीं हुआ है, उस पे भी वो अपग्रेडेशन कर रहा है. कल रात को 2 घंटा पढ़ के आया मैं. कल रात को 2 घंटे पढ़ के आया है. तो अल्टीमेटली दिस इज व्हाट लाइफ इज. सर्वाइवल इज द फिटेस्ट माय फ्रेंड. आई होप ये वीडियो तुम्हें थोड़ा ज़्यादा, हमने टेक्नोलॉजी रिलेटेड ज़्यादा था बिकॉज बहुत से स्टूडेंट्स को ये देखना था. सो हर्षल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू यूफोरी एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. एंड I love to record one more video with you because you are a very interesting person. Because from personally me, I got to know कि blockchain crypto नहीं होता, crypto blockchain नहीं होता. क्रिप्टो का एक छोटा सा पार्ट है ब्लॉकचेन जो मुझे आज पता चला बिकॉज आई एम नॉट दैट टेक savvy anymore. So thank you so much for coming and sharing your experience with us. Thank you.